Is it a Creta killer? Is it a Defender? Or is it a car that you can own and rely on? Well, we'll leave the first two questions aside and we'll focus on the third one. Whether this new Tata Sierra deserves to be in your garage. Hello everyone, welcome back to Times Drive. I'm Ankur Tareja and this video is all about reviewing the new Tata Sierra in detail. But before moving ahead, in case you haven't subscribed to our channel yet, then please do subscribe and don't forget to click that bell icon also to get the latest from the world of automobiles. Now let's start with the review. अब डिजाइन और फीचर्स की जानकारी आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी हो गई होगी। सबसे पहले वीडियो में बात करेंगे इसकी ड्राइव को लेकर। इसका पेट्रोल और डीजल वर्जन दोनों में चलाने वाला हूं। कैसी ओवरऑल ड्राइव है, चलाते वक्त कंफर्ट किस तरह का है, ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स किस तरह के हैं, स्टीयरिंग फीडबैक किस तरह का है, इंजन परफॉर्मेंस किस तरह का है, पहले उसकी बात करते हैं। So let's first look at the engine specifications of both variants that I got to test. I drove the 1.5 litre TGDI Hyperon petrol engine and the 1.5 litre Cryojet diesel engine. Starting with the petrol, it's a 1500cc engine producing around 157 bhp and 255 Nm of torque. The initial pickup of this 1.5 litre TGDI Hyperon petrol engine is really impressive. You get a strong kick right from the start, and the acceleration in the low revs feels punchy and responsive. Last time when I tested the same engine in another Tata car, there were a few rough edges and a turbo lag. But Tata has clearly worked on the tuning and the refinement. In the Sierra, the power delivery feels smoother and more linear. Coming to the diesel, naturally, you don't get that instant kick like the petrol, but after the initial phase, the mid-range performance is excellent. Both engines offer very good overall power delivery. The petrol has better low-end torque and feels livelier from standstill, while the diesel shines strongly in the mid-range and feels effortless while cruising. Now moving towards the handling part, the steering feedback in the Tata Sierra is also quite good. Whether you are in city or in highway conditions, the steering feedback will not disappoint you. In terms of comfort, the combination of seats and suspension setup is excellent. Even on bad roads and deep potholes, the cabin remains quiet and ride stays plush. Now in terms of braking, here I felt the brake pedal is a bit spongy. The feedback isn't as sharp or progressive as I would like. It requires some time to build muscle memory, especially since it was my first proper drive in the car. There's no lack of stopping power in city or highway conditions, but the pedal feel and the precision could definitely be better. This is one area where Tata can still improve. अब ये बात मैं टाटा की कुछ गाड़ियों को लेकर और भी वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं कि डिजाइन और जो कंफर्ट को लेकर टाटा ने पिछले कुछ सालों में काम किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब सिएरा की डिजाइन की बात करूं तो यहां पर भी टाटा ने अच्छा काम किया है। जिस तरह का ओवरऑल वो ओजी वाला सिएरा वाला फील भी है, प्लस वो मॉडर्न टच भी टाटा यहां पर आपको इसमें दे रही है। यहां पे आपको कनेक्टेड लाइट मिलती है, फ्रंट में सिएरा की बैजिंग दी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश थ्रू आउट इसके फ्रंट ग्रिल में है। यहाँ पे टाटा का लोगो, यहाँ पे कैमरा नीचे मिल जाता है, सेंसर्स वगैरह आगे दिए गए हैं, 360 डिग्री कैमरा आता है, नीचे आपको रडार मिल जाएगा, ADAS लेवल 2 वाले फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर भी साइड में आपको वही पियानो ब्लैक टच में आपको इसकी क्लैडिंग वगैरह मिल जाती है। एक चीज़ का आपको दिक्कत हो सकता है जो यहाँ पर ये दिया गया है, इन केस यहाँ पे इसमें टेरेन मोड का ऑप्शन है, ऑफ रोड वगैरह भी थोड़ा बहुत आप इससे कर सकते हैं, तो यहाँ पर उन पियानो ब्लैक एलिमेंट्स के गंदे होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, बार बार आपको क्लीन करने की ज़रूरत उनको पड़ेगी। सिएरा की बैजिंग अगेन यहाँ पर डोर में भी फ्रंट में देखने को मिल जाएगी, प्लस डोर हैंडल्स हैं, एंड अगेन दैट आइकॉनिक दैट ओजी फील दैट टाटा वांटेड टू गिव इन दिस न्यू सिएरा। काफ़ी हद तक मैं कहूँ कि टाटा वो वाला फील इस गाड़ी में दे पाई है। जिस तरह से भी उन्होंने मैनेज करा है, इंजीनियरिंग टीम ने उनकी मैनेज करा है, डिज़ाइन टीम ने मैनेज करा है, वो ओजी वाला फील यहाँ पर आपको इसकी साइड प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। मिरर्स का ओवरऑल जो एरिया है वो भी अच्छा है, एंड ये 5 सीटर कन्फिगरेशन में नई सिएरा लाई गई है, तो ओवरऑल अंदर बैठ के स्पेस किस तरह का है उसकी बात करेंगे। फिर टायर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 17 इंच से लेकर 19 इंच का ऑप्शन रहेगा, डिपेंड करेगा वेरिएंट टू वेरिएंट कौन सा वेरिएंट आप ले रहे हैं। अब एक चीज़ साइड प्रोफाइल को देकर इसमें काफ़ी अच्छे से टाटा ने मैनेज करी है। ओवरऑल जो लेंथ है इसकी, ओवरऑल हाइट है या विड्थ की बात करूं, वहाँ पर इसके जो नंबर्स हैं तीनों जगह क्रेटा से आगे हैं, तो वो एक एस्पेक्ट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अब टेल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको वो फ्लैट टेल डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो इसकी रियर में दिया गया है। सिएरा की बैजिंग अगेन टाटा की बैजिंग है,
कनेक्टेड अगेन टेल लाइट इन द रियर एज वेल, फ्रंट में हेडलाइट कनेक्टेड है, यहाँ पे टेल लाइट कनेक्टेड दी गई है। देन नीचे भी अगेन आपको सेंसर्स, यूएस पार्किंग कैमरा वगैरह ये सब मिल जाएगा। स्पॉइलर व्हील यहाँ पे दिया गया है विद द शार्क फिन एंटीना इन पियानो ब्लैक टच। नाउ लेट्स चेक द बूट स्पेस आल्सो ऑफ दिस टाटा सिएरा। So it comes with a power tailgate option, and the boot space that you get with the second row up is around 622 liters. So वो dimension या length जो आपको extra मिल रही है क्रेटा के मुकाबले, वो किसी तरह से आपको एक extra boot space भी देती है। 622 लीटर का boot space इस सेगमेंट में is a really good number. सेकेंड रो डाउन करेंगे तकरीबन 1200 लीटर के आसपास का स्पेस आपको सेकेंड रो डाउन करने के बाद मिल जाएगा। एंड एक और फीचर अगेन आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, क्योंकि इसकी टेल लाइट जो है यहाँ पर पूरी खोलने के बाद इसको ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे अगेन सेफ्टी के लिए या प्रिकॉशन के लिए, इन केस आप गाड़ी खोल के खड़े हैं, कुछ सामान वगैरह निकाल रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी टेल लाइट ये लिट हो जाएगी। तो दोनों साइड ये ऑप्शन भी यहाँ पे इसमें दिया गया है सेफ्टी के हिसाब से। 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको पीछे यहाँ पे इसके बूट में मिल जाता है। तो ये मामला है कुछ ओवरऑल in terms of design, exterior and the boot space that you are getting in this Tata Sierra. Now let's go inside. How's the overall interior? What all features are you getting in this Tata Sierra? Let's quickly talk about that. So front row की पहले बात कर लेते हैं, गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो मेन सेंटर अट्रैक्शन इज दिस 3 स्क्रीन सेटअप जो आपको यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में दिया गया है, which is first in the segment. 12.3 इंच के आपको सेंटर स्क्रीन और ये पैसेंजर स्क्रीन मिल जाते हैं। अराउंड 10.5 इंच के आसपास का आपको ये इसका ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर जो है इसमें साउंड बार दिया गया है। टाटा कहना था कि ये जो ओवरऑल फील दी गई है, ये बड़ा सा स्क्रीन दिया गया है, यहाँ साउंड बार दिया गया है, वो होम थिएटर वाला फील अपनी वो गाड़ी की पहली रो में देना चाहते हैं, तो वैसा कुछ काम टाटा ने किया है। मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पे आपको लेदर स्टिच वगैरह मिल जाएगा। प्रीमियम फील के लिए यहाँ पे कुछ ग्लॉस एलिमेंट्स का इस्तेमाल करा गया है। यहाँ पे फैब्रिक है जहाँ पे साउंड बार दिया गया है। यहाँ पर भी कुछ सिल्वर स्ट्रिप दी गई है सेंटर में इसके साउंड बार के आगे। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल मिलेगा, बट दी ओवरऑल क्वालिटी इज गुड, कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं करा गया है। फिर आए यहाँ पर आपको USB-C चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं 2, कुछ इस तरह से इसकी चाबी आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर कप होल्डर्स हैं। दिस न्यूली डिजाइन सेंटर कंसोल जो टाटा की किसी और गाड़ी में नहीं है, सिएरा में कुछ ये नया डिज़ाइन यहाँ पे इसमें दिया गया है। थोड़ा फ्लोटिंग सा डिज़ाइन यहाँ देखने को मिलेगा, हालांकि ये नीचे से सपोर्ट है इसके, बट ये कुछ डिज़ाइन यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग यहाँ मिल जाती है। आर्म रेस्ट है एडजस्टेबल स्लाइडेबल ऑप्शन के साथ। यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह है, नॉट मच स्पेस अंडर द आर्म रेस्ट, बट ये कुछ मामला यहाँ पे है। स्टीयरिंग पर आए, देन अगेन टाटा की और गाड़ियों में जो स्टीयरिंग देखते हैं वैसा ही स्टीयरिंग है। दिक्कत जो मुझे होती है इसमें, जो और गाड़ियों में भी टाटा की होती है, इसको टर्न करते वक्त, क्विकली टर्न करने वक्त, स्पेशली इन पार्किंग्स, तो यहाँ पर इसके जो बटन्स दिए गए हैं ये ना चाहते हुए भी कभी कभी प्रेस हो जाते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये डिज़ाइन वाला एस्पेक्ट जो है स्टीयरिंग को लेकर मुझे लगता है टाटा को इसको थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए। एंड जो इसका आर्मरेस्ट है डोर्स में, वो भी थोड़ा फ्लोटिंग फील के साथ दिया गया है। आपको पावर विंडोज़ के स्विच मिल जाते हैं। ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ इस सिएरा में टाटा आपको दे रही है, तो ये एक इसमें एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आए तो आपको सीट्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी बोस्टरिंग के साथ मिलती हैं। कंफर्ट वगैरह भी अच्छा है। अगेन टाटा ने इस एरिया में काफ़ी टाइम से अच्छा काम किया है। कंफर्ट को लेकर भी तो सेम वैसा ही कुछ कंफर्ट आपको सिएरा में देखने को मिलेगा। एंड वन थिंग व्हिच आई फॉरगॉट, ड्राइवर के आपको राइट साइड में कुछ बटन्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको टेरेन मोड्स मिल जाते हैं। 3 टेरेन मोड इसमें दिए गए हैं, नॉर्मल है, वेट है और आपको यहाँ पे रफ मोड मिल जाता है। तो ये टेरेन मोड इसमें आते हैं। एक स्पोर्ट मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। बाय डिफॉल्ट सिटी मोड रहता है, लेकिन एक स्पोर्ट मोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड बूट यहाँ पे आपको खोलने के लिए भी एक बटन दिया गया है फिजिकल। डॉल्बी एटमॉस सिस्टम भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड डोर्स में आपको अम्ब्रेला का स्पेस भी दिया गया है। तो चलते हैं अब इसकी दूसरी कतार में, वहाँ पर स्पेस कैसा है, कंफर्ट वगैरह किस तरह का है, लेट्स चेक दैट आउट ऑल्सो। सो सेकेंड रो स्पेस, थाई सपोर्ट चेक, गुड। नी रूम check, good. Headroom with my height 5'9", check, good. No problem. Average height के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस वगैरह अच्छा खासा यहाँ पे है। कोई 6 फुट का भी बैठा है तो मुझे लगता है स्पेस को लेकर दिक्कत नहीं होगी। तो ये मामला सॉर्टेड यहाँ फील हो रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स, AC वेंट्स सेंटर में। एंड यहाँ पे एक फिजिकल कंट्रोल दिया गया है जिससे आप इसकी सीट को आगे पीछे कर सकते हैं पीछे बैठने के
बाद भी थोड़े बहुत प्रीमियम एलिमेंट्स यहाँ पे सीट में भी देखने को मिल जाएंगे, सन ब्लाइंड्स वगैरह मिल जाते हैं। एंड जो साउंड सिस्टम दिया गया है इसमें आपको, वो भी काफ़ी सॉलिड फील देता है। कुछ कॉपीराइट के चक्कर में भी आपको सुना नहीं सकते, बट स्टिल साउंड सिस्टम इज ऑल्सो रियली गुड। सेंटर में मिल जाता है आपको यहाँ पे इसमें आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वो रियर पैसेंजर्स तीनों के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल मामला भी यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है, स्पेस अच्छा खासा यहाँ पे है एंड कंफर्ट भी अभी फिलहाल यहाँ पे अच्छा मुझे महसूस हो रहा है इसकी सेकंड रो में। Now let's talk about the things that I liked and the things that I didn't like after experiencing this new Tata Sierra. तो पहले बात करते हैं कौन से एलिमेंट्स मुझे अच्छे नहीं लगे। इसमें से पहला है ये पियानो ब्लैक पूरा जो क्लैडिंग वगैरह दिया गया है इसके एक्सटीरियर में। तो ये जो है सड़क पर अगर आप चला रहे हैं तो वहाँ पर तो गंदा थोड़ा बहुत हो ही जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में गलती से ले जाते हैं गाड़ी को तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है और आपको बार बार इसको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक एलिमेंट मुझे लगता है थोड़ा आपको दिक्कत देगा सफाई को लेकर, अगर आप ज़्यादा सफाई गाड़ी की या रेगुलर सफाई नहीं करते हैं। दूसरा एलिमेंट जो मुझे सही नहीं लगा है इस गाड़ी के बारे में वो है बॉडी रोल को लेकर। यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने इसको हिली टेरेन में, बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं थे बट थोड़े बहुत पहाड़ थे, थोड़े ट्विस्टीज थे, तो वहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस किया तो बॉडी रोल मुझे काफ़ी फील हो रहा था थ्रू आउट माई राइड इन दिस एरिया। तो ये मुझे थोड़ा बहुत लगता है दिक्कत देगा। फिर तीसरा एलिमेंट जो मुझे सही नहीं लगा है इस गाड़ी के बारे में, अगेन स्टीयरिंग का जो डिज़ाइन है, और भी गाड़ियों में टाटा की वैसा ही स्टीयरिंग है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम एरिया फॉर मी वाइल ड्राइविंग, स्पेशली वाइल पार्किंग टाटा कार्स। अब जो एलिमेंट्स मुझे सही लगे हैं इस टाटा सिएरा को एक्सपीरियंस करने के बाद, सबसे पहला उसमें से है इसका डिज़ाइन। इम्प्रेसिव है, सड़क पर लोग इसको बार बार मुड़ कर देख रहे थे, गाड़ी के बारे में पूछ रहे थे, गाड़ी को चलाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो जानना चाह रहे थे। तो डिज़ाइन को लेकर ऑफकोर्स टाटा ने वाकई में लाजवाब काम इस सिएरा पे किया है। दूसरा एलिमेंट जो इम्प्रेसिव है इस गाड़ी में, फीचर्स को लेकर भी कोई कमी टाटा ने सिएरा में नहीं छोड़ी है। सेगमेंट में जो फीचर्स में दिए गए हैं ऑलमोस्ट बेस्ट इन द सेगमेंट फीचर्स दिए गए हैं, चाहे वो ट्रिपल स्क्रीन की बात है, पैसेंजर स्क्रीन में जो आप प्ले स्टेशन कंसोल कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ गेम वगैरह खेल सकते हैं। तो काफ़ी कुछ फीचर्स को लेके टाटा इस सिएरा में ऑफर कर रही है। फिर फाइनल एलिमेंट जो मुझे अच्छा लगा है इस टाटा सिएरा के बारे में वो है इसके कंफर्ट को लेकर। थ्रू आउट माई ड्राइव फ्रंट रो सेकेंड रो में कंफर्ट को लेकर भी कोई शिकायत मुझे देखने को नहीं मिली है। आपको भी ये एरिया इस सिएरा में सॉर्टेड मिलने वाला है। Now the final verdict, as an overall package, the Tata Sierra delivers well. Features are generous, the sense of premiumness both inside the cabin and on the exterior is properly maintained for the segment. Space is another strong point. Neither cabin room nor the boot space will disappoint you. Yes, the pricing is slightly higher than direct rivals, around 80,000 to 1 lakh more depending on the exact variant comparison. But if you want a mid-size SUV with decent road performance, good space, strong engines and the essence of an iconic OG Tata nameplate in your garage, then the Sierra is very practical and an appealing choice. And if the Sierra manages to stray free from the major software glitches and niggles in the long run, it has all the potential to be an excellent overall product in the segment.